So, good morning, everybody. This is Bishwajit Datta. And come to the session Why Denying Parenthood to LGBT Couples. We used to run this kind of sessions in the Manthan format basically. मंथन एक हमारा एक आइडिया था जिसमें हर स्टूडेंट फैकल्टी के पास जा करके इनफैक्ट अपने डाउट वट एवर दैट ही इज फेसिंग और शी इज फेसिंग ही कैन डिस्कस एंड शी कैन डिस्कस विद द फैकल्टी. So we try to find out a resolution to the students depending upon the kind of problem the student is facing. और उसमें ना कई बार हमने उसको आगे चल के उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया दैट पीपल यूज टू कम आउट एंड डिस्कस द वेरियस इश्यूज दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री. So recently I thought that let us discuss this particular issue, in fact through the YouTube channel and all. You must be knowing this fact that the National Commission for the Protection of Child Right is right now denying the same-sex couple for the adoption. I mean, if the same-sex couple in a joint format, if would like to adopt a child, they cannot do so. In fact, National Commission for the Protection of Child Right तो ये भी कह चुकी है कि यदि हम सेम सेक्स कपल को किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए ग्रांट दे देंगे, then in that case we are going to endangering our children in the hands of those people. So I have not understood this fact as to why they are saying so and what are the facts and the data that they have received and on the basis of which they are saying this. On the other hand, the Delhi Commission for the Protection of Child Rights says there is no problem. In fact, what is in the best interest of the child हमको वो देखना चाहिए. यदि एक बच्चे की परवरिश एक व्यक्ति करे, on the other hand यदि एक बच्चे की परवरिश दो व्यक्ति करे, I think that is in the best interest of the child. So we don't have any problem if same-sex couple come forward and try to adopt a child. We are okay with that. Last year, the Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करती है और उसमें ये कहती है कि हमारे पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है. The litigation that we have, the law that we have, the provisions that we have are very complex. So we need to have a comprehensive law that should be able to incorporate every community, including the LGBT community. In fact, irrespective of any kind of religion, we need to see the process of adoption in a very comprehensive manner. हमको ये देखना चाहिए कि वो बच्चे जिनको पेरेंटहुड मिलता ही नहीं है, उन बच्चों को हम पेरेंट कैसे दे सकते हैं. So the process and the law has to be very simple so that we'll be able to do justice with those people who do not have parents. ये स्टैंडिंग कमेटी जो लास्ट ईयर पार्लियामेंट में बनी थी उनका रिपोर्ट है. इनफैक्ट द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015 ये कहता है दैट इफ टू पीपल इन ए हेट्रोजेनियस रिलेशनशिप, मेल एंड फीमेल, एज ए कपल, इफ दे वांट टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, दे कैन डू सो. इवन ए सिंगल पर्सन और ए पर्सन हु हैज डिवोर्स्ड हैव द राइट टू अडॉप्ट ए चाइल्ड. इनफैक्ट हमारा 1956 का अडॉप्शन और मेंटेनेंस के ऊपर जो कानून बना है वो भी ये कहता है यदि हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों का यदि सहमति है, कॉन्सेंट है, then they can adopt a child, there is no problem. सिंगल बंदा है तो भी अडॉप्ट कर सकता है, मेल है तो अडॉप्ट कर सकता है, अकेला फीमेल है तो भी अडॉप्ट कर सकता है. लेकिन हमारे देश में सेम सेक्स कपल बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते ज्वाइंटली. If one of the partner in the same sex couple want to adopt a child, there is a possibility. But in that case, the child would be only recognized with that particular person only. The other partner will not be recognized with the child and the right of the child cannot be recognized with the other partner. बताइए. United Nations Convention for the Protection of Child Right वो ये कहती है कि एडॉप्शन प्रोसेस में हमको केवल ये देखना है कि बच्चे के रिस्पेक्ट में क्या बेस्ट है. We need to see what is of the paramount interest or importance in the interest of the child. We are going to see that and based on that the adoption process can be carried out. तो आप बताइए कि सेम सेक्स कपल में यदि एक व्यक्ति बच्चे की अपब्रिंगिंग पे सपोर्ट करे वो ज़्यादा बेहतर होगा कि दोनों व्यक्ति सपोर्ट करें वो बेहतर होगा. बिकॉज अल्टीमेटली हेट्रोजेनियस सेक्सुअल मैरिड लाइफ के अंदर यदि कोई बच्चे को गोद लेते हैं तो बच्चे को मदर और फादर दोनों मिलता है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड. लेकिन यदि एक सिंगल पेरेंट गोद लेता है तो उसको एक ही पेरेंट सपोर्ट करता है. यदि मेल है तो शायद बच्चा उसको अपना पिताजी बोल सकता है और यदि फीमेल है तो शायद बच्चा उसको अपना मदर बोल सकता है. लेकिन सेम सेक्स कपल में यदि दो लोग सपोर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली बच्चे को सपोर्ट तो मिल रहा है ना दोनों प्रकार से. दैट मीन्स द चाइल्ड इज गोइंग टू गेट प्रोटेक्टेड फाइनेंशियली, द चाइल्ड इज गोइंग टू गेट अंडर अम्ब्रेला नंबर ऑफ items, I would say that.
there are a number of things on which the child could be getting lot of advantages. तो एक पेरेंट सपोर्ट करे वो ज्यादा बेटर होगा कि दो पेरेंट सपोर्ट करे वो बेटर होगा? मतलब हेट्रोजेनियस रिलेशनशिप में दो लोग करें तो यहाँ पर भी दो लोग करें तो बराबरी का, इक्वालिटी का एक सेंस मिलता है दैट टू पीपल आर सपोर्टिंग मी, और वहां पर भी टू पीपल आर सपोर्टिंग मी, और यहाँ पर भी मैं दो में से एक को सपोर्ट करने के लिए बोलूं और एक को नहीं बोलूं कि भाई सिंस यू आर नॉट रिकग्नाइज अंडर द लॉ ऑफ लैंड व्हेन इट कम्स टू अडॉप्शन प्रोसेस इन ए सेम सेक्स कपल, तो बच्चे को केवल एक ही बंदे का राइट मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, तो कौन सा बेटर होगा? मतलब व्हाट इज टू बी डिस्कस्ड हियर इज दैट कि किसी व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ये अडॉप्शन प्रोसेस में बाधा नहीं बनना चाहिए। किसी व्यक्ति का मैरिटल स्टेटस क्या है, ये बाधा नहीं बनना चाहिए अडॉप्शन प्रोसेस में। तो इफ टू पीपल इन अ सेम सेक्स लिव इन ए रिलेशनशिप, तो वो बाधा नहीं बनना चाहिए एक बच्चे का अडॉप्शन प्रोसेस में। अल्टीमेटली बच्चे का अडॉप्शन प्रोसेस तो बाधा हो रहा है ना भाई, जब आप ये कहते हो कि नहीं आप दोनों में से एक डिसाइड करो कि किसको बच्चे को गोद लेना है। याद रहे दूसरा पेरेंट उससे कोई कनेक्टेड नहीं होगा, नीदर द राइट ऑफ द पेरेंट्स विल बी एसोसिएटेड विद दैट चाइल्ड and neither the right of the child will be associated with the other parent. Come on, don't tell me, is it really good? In fact, कारा करके जो establishment है हमारे देश में, कारा means Central Adoption and Research Authority, वो ये कहती है that we do invite people who are living in a live-in relationship. मतलब उनका ये कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में यदि मेल और फीमेल है, देन वी एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ दोज पीपल इफ दे वांट टू अडॉप्ट ए चाइल्ड। अच्छी बात है, ग्रेट थिंग्स। यदि वो दो लोग आपस में कोई बच्चा पैदा नहीं करना चाहते या उनका बच्चा नहीं हो रहा है लेकिन उनको बच्चा गोद लेना है, तो दे कैन डू सो। बट इफ टू पीपल बिलोंग टू द सेम सेक्स, इफ वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, देन यू डू नॉट इनवाइट द एप्लीकेशंस। उस जगह पर आप ये कहते हो कि बस केवल सिंगल पेरेंट ही एसोसिएट होना चाहिए, दोनों पेरेंट को हम एसोसिएट नहीं कर सकते। Now, don't you think that this is a restriction that is invariably giving lot of disadvantage to the child who is going to get adopted? I mean, two people can contribute better in the upbringing of the child than that of one single person who would help the child to grow up in a society. And it is also definitely going to give a sense of equality as well. That हाँ कि ये जो बच्चा है इसको भी दो लोगों ने सपोर्ट किया है, इसके पास भी उतने रिसोर्सेस है जितने कि बाकी बच्चों के पास रिसोर्सेस है। If you think that this is something which is definitely going to contribute in the adoption process, then do speak on this particular issue and let us give this right to all those people right now at this point of time who are not able to adopt a child because of certain reasons. तो वो सारे LGBT कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं और इनको लगता है एज ए कपल वी वुड लाइक टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, तो इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए बिकॉज वी कैन क्रिएट ए बेटर सोसाइटी इन दैट वे। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।